Assalamu alaikum everyone. This is Saima Akhtar and today I will be delivering a lecture on a fiction named Pied Piper of Hamelin. Let's understand this name first, then we will try to read and understand the story. What does Pied Piper mean? Pied means having two or more different colors, used especially in the names of birds, having fur or feathers of two or more colors, usually black and white. पाइपर पर्सन हु प्लेज द पाइप मतलब बांसुरी बजाने वाला. हेमलिन हेमलिन इज अ प्लेस इन जर्मनी मतलब एक बांसुरी बजाने वाला जिसने बहुत सारे रंगों का ड्रेस पहना हुआ है. उसी के बारे में है ये कहानी जो हेमलिन. लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी नाउ. लॉन्ग अगो by the Weser River in Germany was a town called Hamelin. Hamelin was a lovely town, but for its rats, rats were everywhere in Hamelin, inside every cupboard, behind every curtain, under every bed, on every table, and even in the streets. Every minute the people of town heard the rats shrinking and squeaking. The rats ate all their food, especially cheese. When the townspeople couldn't take it anymore, they went to the mayor. Everyone was crying and begging for help from the mayor. But the mayor was also a human being, so he was not able to do anything. Suddenly, there was a knock at the door. The person at the door wore a colorful dress, a long coat, and a pointed cap. He said that he possessed a secret charm by which he can draw any creature towards him. When he was introducing himself, the mayor noticed a pipe in his pocket. He said that he will remove all the rats from the town if the mayor will pay him 1,000 silver coins. पहले हम यहाँ तक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत पहले की बात है. जर्मनी में वाइजर नाम का एक दरिया है. उसके किनारे पे एक शहर बसा था जिसे हेमलिन के नाम से जाना जाता था. वही की है ये कहानी. कहानी बहुत मज़ेदार है. अच्छे से सुनना, बहुत मज़ा आएगा सुन के. हाँ, तो हेमलिन जो शहर था वो था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे थे. रैट्स. हर जगह चूहे ही चूहे. जीना मुश्किल करके रखा हुआ था. घर के अंदर भी चूहे, अलमारी में, पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, मतलब सब जगह. लोगों को बस इन रैट्स की चींची सुनाई देती थी. परेशान हो गए थे लोग और उन्होंने सोचा कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. ये चूहे इनका सारा खाना ख़त्म कर देते थे. जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं ना कभी चूहे, और वो रात को जो खाना बिना ढक्कन के या कवर के रखते हैं, सुबह उन्होंने सब खा लिया होता है. सब ने मिलकर बहुत सारे रैट्स को मारा भी, लेकिन कितनों को मारते. सब परेशान थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. तो सब ने मिलकर सोचा कि हमारा जो लीडर है उसके पास जाकर उसको बोलेंगे कि हमें इससे नजात दिलवाओ. इनका जो लीडर था मेयर, मतलब समझो कि एक इलाके का जैसे मिनिस्टर, वो भी क्या करता, वो भी एक इंसान ही था. वो खुद परेशान था. अब ये कमरे में यही बातें कर रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर नॉक हो गया. तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक आदमी अंदर आया. इसकी ड्रेस जो थी बहुत कलरफुल थी और हाथ में इसके एक बांसुरी थी. ये आदमी अंदर आया और कहा कि मेरे पास एक ऐसी सुर मतलब म्यूज़िक है जो अगर मैं बजाऊंगा इस बांसुरी से उसे सब रैट्स भाग जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा. उसने कहा मैं सब रैट्स को भगाऊंगा, लेकिन मुझे 1,000 चांदी के कॉइन्स चाहिए. समझो 1,000 रुपये चाहिए. उस वक़्त के 1,000 रुपये बहुत होते थे.
The mayor agreed to give him the money. Early next morning, the Pied Piper stood near the town hall and began playing his pipe. At once, a melodious tune filled Hamelin. Then thousands of rats started running towards the Pied Piper. When he started moving, the rats also started moving towards him. The Pied Piper started going down a street. He goes to a river visor and took off his boot and stepped into the water. When the rats entered the water, they died. On the evening, the Pied Piper asked for money from the mayor. But mayor refused as he wanted to do repairs in the town. The Pied Piper started seething with anger. Next morning, the Pied Piper stood near town hall and began playing his pipe. Soon there was a rustle which turned into hustle. Now the children were following the Pied Piper. But the people of the town couldn't move. The Pied Piper led the children who followed him in a cave inside a huge mountain. Suddenly they disappeared. अब आगे क्या होता है, सब लोग खुश हो गए कि अरे वाह, हमें आज़ादी मिल गई इन रैट्स से. तो मिनिस्टर जो था उसने कहा ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा. अगले दिन सुबह सुबह वो ये बांसुरी बजाने लगा और ये म्यूज़िक सुन के सारे रैट्स उसकी तरफ आए. ये बांसुरी बजाते बजाते एक दरिया की तरफ गया. सब रैट्स इसके पीछे. जैसे ही दरिया के पास पहुंचा, रैट्स भी पीछे पीछे. वहाँ पे एक नाव थी, मतलब एक बोट थी. उसी में चढ़ गया और रिवर क्रॉस करने लगा. अब रैट्स के पास नाव नहीं थी, लेकिन वो भी इसका पीछा करते रहे जब तक वो पानी के अंदर चले गए और सब के सब डूब गए. अब सब खुश. शाम को ये पाइड पाइपर आया मिनिस्टर के पास अपना इनाम लेने. अब मिनिस्टर अपनी बात से मुकर गया और बोला कि इन चूहों ने हमारे शहर का बहुत हाल ख़राब किया, इसीलिए इन पैसों से हम शहर को ठीक करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे. पाइड पाइपर को गुस्सा आया. वो सोचा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ. वो निकला वहाँ से और अगले दिन सुबह सुबह फिर से बांसुरी बजाने लगा. इतना अजीब म्यूज़िक के सब परेशान हो गए और इस म्यूज़िक से सब के सब एक जगह अटक गए, यानी कि रुक गए. बस इस शहर के बच्चे इस पाइड पाइपर का पीछा करने लगे जैसे कि एक दिन पहले रैट्स ने किया था. लेकिन इस बार ये दरिया की तरफ नहीं, जंगल की तरफ लेके गया और शहर के सब बच्चे इसके पीछे पीछे. अब पूरा का पूरा शहर लॉक. जैसे अभी हम कोरोना वायरस की वजह से लॉक हैं घर में, वैसे ही हेमलिन के लोग भी. बस बच्चे पाइड पाइपर का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए. ये इन बच्चों के जंगल की तरफ एक गुफा यानी कि केव में लेके गया और अचानक सब के सब बच्चे गायब. Only a lamb returned to the town. He said that the Pied Piper was leading them to a valley where the trees were laden with fruits and was spring forever. He also wanted to go there but stumbled. That day 130 children were missing. They and the Pied Piper were never seen again. एक माजूर आदमी था जो लंगड़ा था. उसने इनको देखा जंगल की तरफ जाते हुए. उसने आकर सबको कहा कि पाइड पाइपर बच्चों को जंगल की तरफ लेके गया. अब 130 बच्चे गायब हो गए थे शहर से. सब के सब परेशान कि ये बच्चे गए कहाँ होंगे. उसके बाद पाइड पाइपर और बच्चों को किसी ने नहीं देखा और कहानी ख़त्म. अब कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये सोचो कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिला, क्या सीखने को मिला. There were 3 basic advices for us. Number 1, keep your neighborhood clean and green. अपने आसपास सफाई रखा करो, अपने घर को साफ रखा करो, अपने आप को साफ रखा करो ताकि हम मच्छर और बीमारियों से दूर रहे. दूसरी बात,
नेवर ट्रस्ट द सो कॉल्ड लीडर्स, मतलब इन मिनिस्टर्स या मेयर्स की बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी बोलते हैं और फिर वक्त आने पे मुकर जाते हैं। बी फेथफुल एंड ट्रूथफुल, मतलब तुम अगर किसी को कोई चीज़ देने का वादा करो तो उसे निभाओ, प्रॉमिसेस तोड़ने नहीं चाहिए, वरना अल्लाह को और लोगों को दोनों को बुरा लगता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।